بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس نے پورے ہندوستان شہر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دراصل یہ کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک سچائی گھٹنا ہے جو کہ کلکتہ میں پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ کلکتہ شہر کا ہے جہاں مومتا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت نیک دل کی مالک تھی۔ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا نام مومتا تھا۔ مومتا بچپن سے ہی اپنی ماں باپ بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی کلاس کی ایسی ویسی لڑکیوں سے دوستی نہیں کی تھی۔ اسکول میں بھی جب بھی بریک ہوتی تو ساری بچیاں کینٹین میں چلی جاتی، مگر یہ مومتا اپنا لنچ باکس اور بک اٹھا کر کلاس سے باہر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس نے بہت ہی اچھے نمبروں سے اپنی اسکول کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کالج میں یہ گورنمنٹ کالج سے MBBS کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی فالتو کام میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ نہ کبھی ٹور پر جاتی، نہ ہی کبھی کسی کالج یا فنکشن میں حصہ لیا کرتی تھی۔ یہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اسی کالج میں سنجے رائے نام کا لڑکا بھی پڑھتا تھا جو اس سے 3 کلاس آگے تھا اور اس سے بڑا تھا۔ اس کالج میں سنجے رائے نام کے بہت سارے چرچے سننے کو ملتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی بدتمیز لڑکا تھا۔ وہ اسکول میں بھی لڑکوں کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا اور اس کا کالج میں بھی یہی حال تھا۔ یہ دیکھنے میں بہت شریف لگتا تھا۔ اس کی فیملی اور باقی کے بہن بھائی بہت اچھے تھے۔ یہ ذہین ضرور تھا مگر اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اگر یہ کسی لڑکے کے ساتھ مار پٹائی کرتا تو یہ بہت جنونی ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا مزاج بہت ہی خراب تھا۔ ایک دن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا۔ کینٹین میں یہ چائے پی رہا تھا۔ اسی کے کلاس کا ایک لڑکا سنجے رائے کے ساتھ مذاق میں کہنے لگا کہ یار تو بہت ہی کنجوس ہے۔ تو نے کبھی بھی ہمیں کینٹین سے کچھ نہیں کھلایا، نہ ہی تم نے پارٹی میں کبھی ہمیں اپنے گھر بلایا ہے۔ پہلے تو سنجے رائے بھی اس کے ساتھ مذاق کرتا رہا۔ جب مذاق میں یہ بات بہت بڑھ گئی تو سنجے رائے کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ساری کینٹین کے سامنے اس کو ذلیل کیا، یہاں تک کہ وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ پھر وہاں کھڑے لڑکوں نے اس کے دوستوں نے اس کو سمجھا بجھا کر معاملہ رفع دفع کیا۔ سنجے رائے لڑکیوں کے ساتھ بھی اسی طرح بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ ایک بار مومتا باہر بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی اور دوسری لڑکیوں کا گروپ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جبکہ کوئی لڑکی اپنی بوائے فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی تو کوئی اپنی کزن سے باتیں کر رہی تھی۔ سبھی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں سنجے رائے مومتا کے پاس آ کر کہنے لگا، اتنی پڑھائی بھی اچھی نہیں، انسان کو خود پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر تم ہر وقت پڑھائی میں گم رہو گی تو باہر کی دنیا کیا کر رہی ہے کیسے دیکھو گی؟ مومتا نے اس کی باتوں کو ترجیح نہ دی اور اٹھ کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ مومتا اپنی کلاس میں سب سے ٹاپر لڑکی تھی اور سنجے رائے پڑھائی میں اچھا تھا مگر لوفر قسم کی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی بری حرکتیں کیا کرتا تھا۔ بہت ہی کوششوں کے باوجود بھی اس بار مومتا کو اپنی اچھی دوست نہیں بنا سکا۔ مگر مومتا کو اپنی پڑھائی کے علاوہ کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سنجے رائے کا اس کالج میں آخری سال تھا اور مومتا اپنا میڈیکل پڑھائی جاری رکھے ہوئی تھی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کو ڈائری لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ جو دن میں کیا کرتی تھی وہ ہر وقت اپنی ڈائری پر لکھتی رہتی، یا دن میں ہوئے واقعے کو وہ رات میں اکیلے میں فری ٹائم میں بیٹھ کے ضرور لکھتی تھی۔ اس کے والدین اپنی بیٹی سے مذاق کرتے تھے کہ ایک دن ہم تمہاری ڈائری کو چھپ کر ضرور پڑھیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی اس کی پڑھائی کو جاری رکھنے میں بہت محنت کر رہے تھے۔ چونکہ یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اسی لیے اس کا ایڈمیشن گورنمنٹ کالج میں ہوا تھا، کیونکہ پرائیویٹ کالج کی فیس بہت مہنگی ہوتی ہے اور اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جب مومتا کالج کی ٹریننگ لے رہی تھی اس وقت سنجے رائے نے اپنی شادی کا کارڈ اپنے کالج فرینڈ کو بھیجا۔
जिनमें मौमिता भी शामिल थी। संजय रॉय अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। संजय रॉय ने बहुत बार कोशिश की कि वो पुलिस में भर्ती हो सके। संजय रॉय के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे। वो एक शराबी शख्स था और 2 साल शादी होने के बावजूद भी इसके यहाँ कोई औलाद ना हुई। उल्टा इसकी बीवी को कैंसर हो गया और फिर इसकी डेथ हो गई। फिर इसने दूसरी शादी की। दूसरी बीवी के साथ भी इसका काफी लड़ाई झगड़ा रहता था। बहुत सारे लोगों का कहना था संजय रॉय के खिलाफ कई लड़कियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यह कई तरीकों से लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इसके साथ गाली गलौज और गुस्सा करना, यह सब इसके मिजाज में शामिल था। इसके खिलाफ काफी ज्यादा एफआईआर और रिपोर्टें दर्ज करवाई गई थी। इसने फिर दूसरी शादी की। इसका दूसरी बीवी के साथ भी ताल्लुक अच्छा नहीं था। वह अपनी बीवी को बहुत मारा पीटा करता था। उसकी बीवी 3 माह की हामला थी। उस दिन इसने अपनी बीवी पर बहुत तशद्दुद किया। इसको कमरे से घसीटता हुआ बाहर की तरफ लेकर आया। वो चीखती चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसकी बीवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर इसे घर वाले हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसके 3 माह का बच्चा ज़ाय हो चुका है। इस तरह संजय रॉय ने अपने 3 माह के बच्चे का भी कत्ल कर दिया। वह लोगों से चीटिंग भी किया करता था। डॉक्टर मौमिता का एमबीबीएस फाइनल हो चुका था। अब वो हिंदुस्तान के कलकत्ता शहर में एक पुराने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी। वहां पर बहुत सारे मरीज होते थे जिनको जूनियर डॉक्टर चेकअप करते थे और यह ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टर इनके पास खड़े होकर इनकी बातों को समझते थे। डॉक्टर मौमिता के साथ इसकी 2 दोस्त भी थी जो बचपन से इसके साथ पढ़ाई करते आ रही थी। अब वो दोनों भी इसके साथ ट्रेनिंग ले रही थी। संजय रॉय भी 4 साल से इसी हॉस्पिटल में चौकी का काम कर रहा था। एक दफा इसने संजय रॉय ने एक मरीज को इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर का अभी भी राउंड चल रहा था। वो जूनियर डॉक्टर से कहने लगा कि पहले राउंड को छोड़कर मेरे मरीज को चेक करो। वो जूनियर डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी। इसने कहा मेरा राउंड खत्म होने के बाद मैं इस मरीज को चेक करूंगी, आप परेशान ना हो। जिस रूम में मरीज को एडमिट करवाया वहां का अमला इसे देख लेगा। संजय रॉय लेडी डॉक्टर की बात ना मानते हुए बदतमीजी करने लगा। वहां खड़े सारे अमले ने उसके इस हरकत को देखा। यह संजय रॉय लड़कियों की इज्जत कभी नहीं करता था। डॉक्टर मौमिता एक दिन नाइट ड्यूटी पर थी। इस दिन संजय रॉय एक मरीज को लेकर इस हॉस्पिटल में आता है इसको एडमिट करवाने के लिए। फिर इसी दिन दोबारा रात को 11 बजे संजय रॉय इस मरीज के पास आता है इसको देखने के लिए अब इसकी तबीयत कैसी है। वो मरीज की फैमिली से बातें करके वहां से वापस चला जाता है। फिर रात के 1 बजे इस बिल्डिंग में दोबारा वो किसी मरीज को लेकर आता है। उस दिन उस मरीज का ऑपरेशन होता था। फिर उससे कुछ देर बातें करता है और फिर वहां से जाकर तकरीबन 1:30 बजे के करीब बाहर सड़कों में घूमने लगता है। यह बात संजय रॉय की हो रही है जो कि एक बार हॉस्पिटल में आता है, मरीज को देखता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा किसी और मरीज को देखता है और फिर चला जाता है। ना तो यह इस हॉस्पिटल में कोई काम करता है ना ही पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी यह एक शर्ट डालकर घूमता है जिसके पीछे लिखा होता है कि यह पुलिस कलकत्ता। इससे लोग यही समझते थे कि शायद यह कोई पुलिस वाला है क्योंकि ये बातें भी पुलिस वालों की तरह करता है। उन्हीं की तरह पूछ-गूछ किया करता था। वालों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। इसे यह कहीं भी आ जा सकता था, हॉस्पिटल में भी आ जा सकता था और इसको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर मौमिता 31 साला जो नाइट ड्यूटी पर मौजूद थी, रात के 11 बजे अपने रूम का राउंड करके इसने अपने वालिदैन से फोन पर बात की कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात नाइट ड्यूटी पर हूँ, इसके बाद दोबारा राउंड पर जाऊंगी और इसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगी तो फिर आपसे बात करूंगी। फोन कॉल को बंद करके फिर एक मरीज के पास गई। इसने इसको देखा, फिर वहां से आकर रात के 2 बजे अपने जूनियर डॉक्टर लेडी डॉक्टर के रूम में चली गई। उनको साथ लिया और कैंटीन में जाकर इन चारों ने खाना खाया। खाने के दौरान वो टीवी पर एक मैच देखने लगी, लेकिन यह क्रिकेट मैच नहीं था, इसमें गेम थी। वो थोड़ी देर के लिए वहां बैठकर टीवी देख रही थी।
वो अपनी लेडी डॉक्टरों के साथ बैठकर बातें करने लगी। फिर अपने दोस्तों से कहने लगी कि 36 घंटों की ड्यूटी के बाद मैं थक सी गई हूँ। ऐसा करती हूँ कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अभी इस हॉस्पिटल की चौथी मंजिल, जो कि बिल्डिंग से, इसमें एक सेमिनार हॉल है, वहां पर जाती है। सेमिनार हॉल में कोई कैमरा मौजूद नहीं था। वो थोड़ी देर इधर उधर फिरती है, फिर वहां पर एक जगह पर बैठ जाती है और फिर वहां से उठकर खिड़की के बाहर देखने लगती है और सोचने लगती है अगर आराम करने की गरज से सो गई तो दोबारा कहीं कॉल ना आ जाए, क्योंकि वो एक मेडिकल ट्रेनिंग ले रही थी। इस ट्रेनिंग के मैदान में बरअक्स बहुत लंबी लंबी ड्यूटी करनी होती थी। किसी की 36 घंटे की ड्यूटी होती थी तो किसी की 72 घंटे की। जिसका जिस वक्त फोन आ जाता था उसे उठकर वहां जाना पड़ता। बीच में उसकी आंख लग जाती है और एक चौकीदार आता है और उसको एक रिपोर्ट दिखाने के लिए। रिपोर्ट देखकर वो दोबारा सो जाती है। दूसरी तरफ इसी हॉस्पिटल में तीसरी बार जब संजय रॉय हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है, इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां घूमने के बाद वो सीधा ऊपर सेमिनार हॉल के अंदर जाता है, आता हुआ कैमरे में नजर आता है। इसके बाद वो पौना घंटा अंदर रहने के बाद दोबारा जब सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है तो एक बार फिर कैमरे में कैद हो जाता है। पौना घंटा अंदर सेमिनार हॉल में इसने क्या किया, कैसे किया, किसी को कुछ खबर नहीं थी। जब सुबह होती है तो 8 बजे एक सफाई करने वाला जमींदार सफाई के लिए जब इस दरवाजे को खोलता है तो इसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि अंदर एक लाश पड़ी हुई है जो बुरी तरह खून से लथपथ पड़ी हुई है। वो देखने ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखता हुआ वहां से बाहर निकल आता है। एकदम देखने से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। इसके बाद डॉक्टर भी वहां पहुंच जाती है। इस हॉस्पिटल के ऊपर जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, वो इस बात को दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर यह बात दबने वालों में से नहीं थी। वहां पर के डॉक्टरों का उम्दा और नर्सेज मरीजों की भीड़ लग जाती है। उसी में से किसी ने फिर डॉक्टर मोमिता के वालिदैन को कॉल करके बताया कि आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, आपकी बेटी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इनको काफी चोटें आई है। ये कॉल सुनकर इसके वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने इसे फोन पर दोबारा कॉल की मगर किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। फिर दोबारा किसी और नंबर से कॉल आई। इनको किसी ने बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। अब डॉक्टर मोमिता के वालिदैन और भी ज्यादा परेशान होकर सोचने लगे कि ऐसी तो कोई बात नहीं थी, हमारी बेटी खुदकुशी तो नहीं कर सकती, रात को तो बिल्कुल ठीक थी, इसने हमारे साथ फोन पर भी बात की थी। फिर इसके वालिदैन कुछ हमसायों को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर और सेमिनार हॉल के पास बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग जमा थे। इनके वालिदैन अपनी बेटी को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे मगर किसी ने इसको अंदर नहीं जाने दिया। इनको 3 घंटे तक बाहर खड़े रखा। फिर जब इसके वालिद को अंदर जाने दिया तो कहने लगे कि आप अंदर जाए और अपनी बेटी की एक तस्वीर लेकर वापस आ जाए। जब इनके वालिद ने देखा तो इनकी बेटी बुरी तरह खून से लथपथ और जख्मी हालत में थी। इसके वालिद अपनी बेटी को देख के एक तरफ उठे और कहने लगे कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, इस पर तशद्दुद किया गया है, क्योंकि इनकी बेटी के जिस्म पर जगह जगह खरोंच के निशान थे। कोई भी इनकी बेटी को इस हालत में देखता तो बहुत अफसोस करता, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और इसके चश्मे से कांच टूटकर इसकी आंखों में गड़ गया था और खून निकल रहा था। इसके दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी। इसके जिस पर चोट के निशान थे, चेहरे पर नाखूनों के निशान थे। ये एक्सीडेंट होने के बाद कलकत्ता की पुलिस तशवीश कर रही होती है। पुलिस हॉस्पिटल के सारे कैमरे चेक करती है। यह कैमरे में 5-6 लोग नाइट ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। फिर सब हॉस्पिटल के सारे कैमरे चेक करती है। कैमरे में 5-6 लोग नाइट ड्यूटी पर थे, उन सबकी रिकॉर्डिंग आ जाती है। इस हादसा को देखकर सभी लोगों ये कहते हैं कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, बल्कि ये इसमें पूरा ग्रुप शामिल है। मोहतरम हजरात, अभी इस केस का खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम लोगों को दुआ करनी चाहिए
کہ ڈاکٹر مومتا کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا کرے اور ان کے ساتھ انصاف ہو، اور خاص کر ہم والدین کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی پرورش دے، اور بیٹا اور بیٹی دونوں کو یہ سمجھائے کہ ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کبھی کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم لوگوں کو اس ناپاک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔